Hello and welcome back, students. This is Abhishek Tiwari here, and I'm welcoming you everyone on this YouTube platform where I am going to give you another video of your poetry section. And this poetry is A Thing of Beauty by John Keats. Dear students, let's move further and see what is in this poetry. First of all, let me tell you about John Keats. He's a very famous romantic poet, a British romantic poet, okay, who wrote so many romantic, poetries all through his life. Okay, he was multi behavioral people person, who did so many work in his entire life. And after just experiencing all these different professions in life, he turned to a writer later, okay, or a poet later. So this poetry is nothing but an excerpt from his poem, a very famous poem which named Endymion, a poetic romance. Okay, so this poetry is nothing but an excerpt. It's a part of this beautiful epic poetry of his Endymion, a poetic romance. Okay, so the poem is based on a Greek legend. Students, this poem is based on a Greek legend. Okay, means a Greek superman, or sometime you can say like god. Okay, Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd, okay, Endymion, he was a young and a beautiful shepherd and poet who lived on Mount Latmus. These all are mythical people and mythical creatures which has been described here. Had a vision of Cynthia, okay, who actually, that shepherd, who actually had a vision of Cynthia, the moon goddess. Okay, so enchanted youth resolved to seek her out and wandered away through the uh, forest and down under the sea. Okay, so he just tried to seek the beauty of different things through all through the word, okay, which belongs, and tried to emphasize the nature's beauty in this poetry. Okay, so uh, he just by the words of the poet is describing here, or emphasizing here, the beauty of nature in this poetry. Okay, which he termed as a thing of beauty. Okay, a thing of beauty. So ladies and gentlemen, let's talk about the details of this poetry. Don't worry, I would tell you in both Hindi and English. Okay, English. So do not worry about the terms, it will never be entirely in English, so you would get more about this poetry in more detail. Let's start this poetry. How? Let's see, everyone. First of all, before we cast the poetry, let me tell you, students, about इन एंटायर लाइफ, ओके, आप जानते हैं कि पूरे जीवन काल में हम सब जो है बहुत सी ऐसी डेस्पोडेंस से, निराशा से, ग्लूम से ना घिरे होते हैं। हर तरफ जीवन में जो है बहुत सी शंकाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी अ, बहुत सी एस्पिरेशंस हैं, हम इनके साथ घिरे हुए होते हैं। और हमें जो है कहीं पे भी जो है चीज़ें दिखाई ना, फिर क्या होता है कि इन सब के बीच में फिर आप देखते हैं कि अक्सर लोग नेचर्स के बीच में जा कर के ना अपने लिए सुकून तलाशते हैं, अपने लिए एक कंफर्ट तलाशते हैं ना, इजी गोइंग प्रोसेस को ढूंढते हैं उसमें जा कर के, नेचर्स में। कोई हिल स्टेशन को जा रहा है, कोई जो है इंजॉय करने कहीं और जा रहा है, ठीक है। तो नेचर को देख करके, नेचर की ब्यूटी को जो है देख करके लाइफ में कंफर्ट जो है गेन करते हैं। तो उस चीज़ को ही पोएट ने उसी नेचर की जो ब्यूटी है, ठीक है, किस तरह की ब्यूटी है नेचर में, उसको जो है कहीं ना कहीं ब्यूटीफाई कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं जो है वो ना उसको वो मैग्निफिशेंटली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है विद अ क्वेश्चन, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। ओके, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। ओके, पोएट यहाँ क्वेश्चन करता है कि कौन सा प्लेजर, कौन सा आनंद हमें जो है सुंदर चीज़ों से मिलता है, सुंदर वस्तुओं से मिलता है, क्या इनमें जो है ना
क्या इन सुंदर चीज़ों में जो है खजाने या फिर बचा के रखने लायक, सुरक्षित करने लायक सुंदरता होती है, या ऐसी कोई चीज़ होती है? ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, पोएट्री में। ये जो पोएट्री है, पहले आपको मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी, अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें, ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में राइमिंग स्कीम्स के बारे में पूछ लेता है। तो इस पोएट्री की राइमिंग स्कीम आप देखिए, पोएट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से राइम किया गया है। ओके, यू कैन सी फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, ओके, breathing, breathing, earth, days, ways, like this. Okay, so you can check the rhyming scheme here: a, b, b, c, c, and d, d, like this. So you can see the rhyming scheme is a, b, b. Okay, like this you can tell the rhyming scheme of this poetry. Let's move toward this beautiful poetry with lines and explanation as well. See everyone, how this poetry is explained, is described to you. Okay, how the poet is describing or emphasizing the nature's beauty as well. Okay, let's move further. See, so you can see, a thing of beauty is a joy forever. Okay, so poet here is describing uh, the beauty of a thing, like जीवन में ऐसी बहुत चीज़ें होती है जो हमें आनंद देती हैं। कभी आप पेड़ की छाया में बैठ के आनंद लेते हैं, धूप, आप कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में टहल रहे हो और पेड़ की छाया मिल जाए तो आप देखते हैं कितना आराम, आपको कंफर्टेबल फील होता है, कितना आराम फील होता है। ठीक है, आप गर्मी में जल रहे हो, ठंडा पानी मिल जाए आपको पीने के लिए, आपको क्या जो जो खुशी महसूस होती है वो वास्तव में पानी की नहीं, उसकी खूबसूरती की होती है। ठीक है, तो उसी ब्यूटी को जो है यहाँ पे पोएट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है इस पोएट्री में। लेट्स टेक अ लुक। ओके, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक वस्तु की जो सुंदरता होती है ना, वो हमेशा के लिए एक आनंद होती है, एक खुशी होती है जो हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर बैठ जाती है। ठीक है, आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ आप पहाड़ों पर नदियाँ झरने घूम के आते हैं और उसकी यादें ना अमिट रूप से ना अनरिवर्सिबली पूरे जीवन भर चलती रहती है आपके पास। आप कभी भी जिक्र होता है आप तुरंत उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ की सुंदरता होती है, स्थान उस वस्तु की सुंदरता होती है। ठीक है, सो इट्स लोनलीनेस इंक्रीजेस, ओके, इट्स सॉरी लवलीनेस इंक्रीजेस। क्या होता है कि जो वस्तु की सुंदरता होती है वो कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा वो आनंद के रूप में बनी रहती है और इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस। और ये जो सुंदरता है ये कभी समाप्त होने की ओर या समाप्ति के रास्ते से गुजरती नहीं है ना, ये हमेशा बढ़ती रहती है, ये कभी समाप्त नथिंगनेस की ओर नहीं जाती, कभी समाप्त नहीं होगी ये। ओके, बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस। ओके, लेकिन ये, बल्कि ये क्या होता है, इट विल कीप अ बोअर, बोअर मतलब शैडो, ठीक है, छाया होती है। बट ये क्या होती है, ये इट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, ये हमारे लिए एक छाया का काम करती है, ये हमारे लिए एक छाया जो है देगी। एंड अ कीप मतलब धूप से, चिलचिलाती धूप में जैसे व्यक्ति को छाया मिल जाए, वैसे ये हमारे लिए एक छाया के समान होती है, एक शावर, एक बोअर के समान होती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, कंपेयर कर रहा है, मेटाफर्स का यूज़ कर रहा है पोएट यहाँ पर। अगर हम इसकी डिवाइस की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे मेटाफर यूज़ हो रहा है। ठीक है, मेटाफर, अब बोअर क्वाइट फॉर अस, कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में बिना कंपेरेटिव वर्ड्स के, तो मेटाफर नाम का डिवाइस यूज हो रहा है। डिवाइसेस भी एग्जाम में पूछते हैं तो आप वो भी पढ़ते चलिए। ठीक है, क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक ये जो सुंदरता होती है इसको कंपेयर कर रहा है कि ये एक सपनों से, मीठे सपनों भरी हुई एक नींद के समान होता है, एक स्वास्थ्य के समान होता है ना, क्वाइट ब्रीथिंग, और एक जो है शांतिपूर्ण ढंग से जब आप सांस लेते हैं अच्छे तरीके से, रिलैक्स जो है, रिलैक्सनेस का भी प्रतीक होता है, या उसकी की तरह होता है। जैसे आप एक पेड़ की छाया में जो है पूरे सपनों के साथ सो रहे हों, स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य आनंद ले रहे हों और अच्छे से सांस लेके आप रह रहे हों, ऐसा एक सुंदरता वस्तु की होती है किसी व्यक्ति के लिए। देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स टुमारो, ऑन एवरी टुमारो इसलिए हर आने वाला कल जो होगा, आर वी ब्रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। ठीक है,
अब यहाँ पे ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें एक और इंगैपमेंट जो है करके एक जो है पूरी पोएट्री अगर हम बात करें तो यहाँ पूरी पोएट्री में एक डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है इम्बैज। ठीक है, उसको कहते हैं इंगैपमेंट। इंगैपमेंट जो है नाम की डिवाइस है, मतलब कि पूरी पोएट्री जो है बिना जो है पंक्चुएशंस के एक साथ लिखी गई है। आप देखेंगे इस तरह की पोएट्री जहाँ पे बिना पंक्चुएशंस के ठीक है एक साथ पूरी पोएट्री लिखी जाए, उसको हम इंगैपमेंट की इंगैपमेंट उसको कहा जाता है, इंगैपमेंट ठीक है कहा जाता है। तो ये भी आप जानते रहिए। तो कह रहा है पोएट, इसीलिए हर आने वाला कल जो है, आर वी ब्रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हर आने वाला कल जो है, ब्रेथिंग का मतलब होता है लपेटना, डालना, बांधना, ठीक है, मालार्पण करना, ठीक है। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, बैंड यहाँ पे देखिए एक फ्लावरी बैंड का वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। बैंड बाइंड टू अस, यहाँ पे आप एक डिवाइस यहाँ भी आपको मिलेगा, बैंड टू बाइंड, मतलब कि ये एलिट्रेशन है जहाँ पे एक 20 वर्ड बी कॉन्सोनेंट साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की जैसे माला हो, टू बाइंड अस टू द अर्थ, ठीक है। तो हर आने वाला कल हमें जो है वो हमें इस धरती से, इस सुंदरता की वजह से ही वस्तुओं के, हर आने वाला कल हमें क्या करता है, हमें इस धरती से एक माला से, एक फूलों के गुच्छे से या माला से हमें बांधती है या हमें उसमें जोड़े रहती है, ठीक है। अब आगे देखिए ना, इन स्पाइट ऑफ, अब आप इस चीज को देखिए, ठीक है, पोएट क्या कह रहा है, पोएट कह रहा है, ठीक है, कि आप इस चीज को देखिए, यू नो, ठीक है, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, भले ही, मैं भले ही, इंस्पाइट मतलब स्पाइट है, इंस्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस है। डेस्पोडेंस का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है सैडनेस, ठीक है। डेस्पोडेन, सैडनेस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन का मतलब होता है क्रूएल, ठीक है, निर्दयी, क्रूएल, अमानवीय। डर्थ का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी, ठीक है। सो भले ही चाहे वो निराशा हो, हमारे आसपास आप देखेंगे हमारे जीवन में हम घिरे हुए हैं हर चीज़ से, निराशा से, अमानवीय, क्रूएल, स्कैरसिटी से, मतलब कि कमी से घिरे हुए हैं। नोबल नेचर, इसके अलावा हमारे आसपास श्रेष्ठ जो है एक नेचर, हमारा जो नेचर, हमारी प्रकृति है, वो है हमारा जो व्यवहार है। ऑफ द ग्लूमी डेज, इसके अलावा जो है निराशा भरे दिन भी हैं हमारे चारों तरफ, ठीक है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, इसके अलावा अनहेल्दी, अस्वास्थ्यप्रद या अस्वास्थ्यकर, जो अनहेल्दी जो है लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी चीज़ें हैं हमारे आसपास, ठीक है। इसके अलावा ओवर डार्केंड मतलब एविल वेज, और हमारे जो बुराई के रास्ते हैं, ये सब होने के बावजूद भी जो बने हुए हैं, मेड फॉर आर सर्चिंग, ये सब चीज़ें हमारी, हमें खोजने के लिए बने हैं, हम इसको खोजते रहते हैं हमेशा ऐसी चीज़ों को। इन सब के बावजूद भी, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल, ठीक है। कुछ ऐसी सुंदरता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुओं की सुंदरता है जो हमारे अंदर से ना, पैल का मतलब होता है सैडनेस, ठीक है, जो इस दुख को, इस सैडनेस को दूर कर देती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी आत्मा के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर जो एक सैडो ऑफ सैडनेस भरा हुआ है हमारी सोल के ऊपर, इससे, इस सैडनेस को ये सुंदरता जो है दूर कर देती है ठीक है। आप देखते हैं कि जब आप डॉक्टर्स, कभी अक्सर आप बीमार होते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका स्थान, इनकी जगह चेंज करिए, इनको हिल स्टेशन ले जाइए, इनकी हेल्थ में रिकवरी आएगी, इनको आप शहर से गांव ले जाइए, इनको रिकवरी आएगी। क्यों कहते हैं डॉक्टर्स ऐसे? क्योंकि वो जो चीज़ें हैं, है ना, जो आप वहाँ की लाइफ में आप ऐसे डेस्पोडेंस से, निराशा से सॉरी, निराशा से, इसके अलावा जो इनह्यूमन हर्थ डर्थ, आप अमानवीयता से, क्रूएलिटी से, स्कैर्सिटी से घिरे होते हैं, अंधकार भरे दिनों में घिरे होते हैं, अनहेल्दी जीवन जी रहे होते हैं, और बुराई के रास्तों पे चले रहे होते हैं, जो हम सर्च करते रहते हैं ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो इन सब जो, और ये सब हमारी आत्मा के ऊपर छाए हुए हैं ये सैडनेस के रूप में बन के, तो ये सब चीज़ों को जो है, ये जो ब्यूटी है वस्तुओं की, ये इनको दूर कर देती है, इन चीज़ों को, इन चीज़ों से हमें दूर कर देती है, हमारी आत्मा पे छाए हुए इन बुराइयों को दूर कर देती है,
ठीक है। सो और ये चीज़ों के बारे में बता रहा है पोएट कि ये सब चीज़ें आखिर हैं क्या। ठीक है, वो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये आखिर हैं क्या, उसके बारे में भी वो बोलता है कि आप इसको देखिए कि कैसे जो है कहता है कि कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें, ठीक है, हमारे अंदर से इस निराशा को दूर कर देती है। सच एज द सन, सूरज हो गया, चांद हो गया, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने और नए पेड़ हो गए। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें एलिट्रेशन के बाद यहाँ पे एक और डिवाइस आपको देखने को मिलेंगी, ओल्ड एंड यंग। इसको कहते हैं एंटीथेसिस। क्या कहते हैं? एंटीथेसिस नाम की एक डिवाइस यूज हुई है। ओल्ड एंड यंग मतलब दो ऑपोजिट चीज़ों को एक साथ यहाँ पे यूज़ किया गया है। मतलब कि पुराने और नए ना, तो पुराने और नए पेड़ हो गए ना, ये सब चीज़ें जो है, ये सब क्या होते हैं, ये सब ऐसे नेचर की ब्यूटी हैं जो हमें आनंद देती हैं, हमारे अंदर के दुख और निराशा को दूर करती हैं। स्प्राउटिंग अ सैडी बून, ठीक है। इसके अलावा स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मतलब होते हैं कि उग रहे होते हैं, नया जीवन निकल रहा होता है। सैडी बून, ठीक है, एक छायादार जो है ब्लेसिंग्स के रूप में, बून मतलब, ठीक है, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से एडवांटेज, ब्लेसिंग्स कह सकते हैं। तो एक छायादार ब्लेसिंग्स के रूप में जो है हमारे बीच में जन्म ले रहे होते हैं। ठीक है, सैडी बून फॉर सिंपल शीप ना, कह रहा है पोएट कि सैडी बून फॉर सिंपल शीप, जो कि एक साधारण सी जो है भेड़ों के लिए एक ब्लेसिंग्स होती है, छायादार आशीर्वाद के रूप में जो है हमारे बीच में होती हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही पोएट आगे बात कर रहा है। ठीक है, स्प्राउटिंग बून, यहाँ पे जो पोएट ने एक और डिवाइस का यूज़ किया आपको मैं बता दूं। ठीक है, एक और डिवाइस के रूप में आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, स्प्राउटिंग ए सैडी बून। ये एक इमेजरी है, ठीक है, एक डिवाइस होती है इमेजरी, है ना। तो इमेजरी नाम की एक डिवाइस यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे इमेजिन करते हैं आप चीज़ों को, तो एक इमेजिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बहुत से डिवाइसेस के साथ पोएट्री भरी हुई है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। फॉर सिंपल सी मतलब साधारण भेड़ों के लिए ये क्या होती है, भेड़ों के लिए एक छायादार आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स होती है, ये जो सुंदरता होती है। सच आर डैफोडिल्स, और इसके अलावा वो जो डैफोडिल्स, गुड़हल वगैरह के जो फूल होते हैं, डैफोडिल्स वगैरह होते हैं, विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन, जो हरियाली भरी दुनिया में जहाँ पे ये फूल रहते हैं, उगते हैं। ठीक है, एंड क्लियर रिल्स, और इसके अलावा जो साफ सुथरे पानी की जो झरने हैं, रिल्स हैं, लेक मतलब फॉल्स हैं। ठीक है, दैट फॉर देमसेल्व्स, जो खुद से जो है कूलिंग कवर्ड मेक, ठीक है, एक ठंडेपन का ना, एक ठंडेपन का जो है एक खजाना बनाते हैं, एक ठंडेपन का एक ट्रीजर डेवलप करते हैं। ठीक है, वो पोएट कह रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं एक ट्रीजर डेवलप करते हैं जो है हमारे जीवन में। ठीक है, अगेंस्ट, गेंस्ट मतलब अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो गर्म मौसम है उसके खिलाफ ये चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, ठंडापन दे करके हमारे जीवन में खुशियाँ लाती हैं। हमें इन वस्तुओं से जो है एक सुंदरता देखने को मिलती है जो हमें ब्यूटीफाई करती है, हमें प्लेजर, कंफर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, इसके अलावा जो है जंगल के बीच के जो है जो जो वैलीज मतलब जो उसके मतलब अलगाव हैं, जो उसको अलग करने वाली नदियां हैं। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, इसके अलावा उसमें क्या है, रिच विथ स्प्रिंकलिंग मतलब कि स्प्रिंकल करते हुए जो है ना, फेयर मस्क रोज, मस्क रोज एक तरह का रोज होता है, ब्लूम्स, जब वो रोज खिलता है, ब्लूम होता है, तो एक बड़ी सी जो है रिच स्प्रिंकलिंग मतलब एक बिखर जाती है सुंदरता जो है हर तरफ। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ऐसे ही पोएट, ठीक है, नेचर के साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी ब्यूटीफाई कर रहा है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक आनंद के पल लाते हैं। ठीक है, कहता है कि ग्रैंडियर्स, ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, डूम्स का मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रक्शन या वॉर। ठीक है, तो वॉर या डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। एंड ग्रैंडियर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इम्प्रेसिवनेस या महानता। और ऐसे ही जो ये युद्धों की और ऐसे जो विनाशों की जो महानता है, जो इनका इम्प्रेसिवनेस है हमारे जीवन के ऊपर, वी हैव इमेजिन्ड फॉर माइटी डेड। ठीक है, जिसको हमने इमेजिन किया है उन माइटी मतलब शक्तिशाली मरे हुए लोगों के जीवन से हमने उसको महसूस किया, इमेजिन किया है। ऑल लवली टेल्स, और सारी वो सुंदर कहानियाँ दैट वी हैव हर्ड और रीड, जिसको हमने सुना है दादी नानी से, या फिर जिसको हमने पढ़ा है किताबों में जो है
ना, ये सब चीज़ें एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये सब क्या है? अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक मेटाफर डिवाइस यूज हो रहा है ना, मेटाफर डिवाइस यूज हो रहा है, आपको बता रहा है ना कि इमोर्टल ड्रिंक, इसको इस सुंदर, इस वस्तुओं की सुंदरता को इमोर्टल ड्रिंक के रूप में कंपेयर किया जा रहा है। एन एंडलेस फाउंटेन, ये एक न समाप्त होने वाला एक झरना है ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, मतलब कि एटर्नल, इमोर्टल मतलब जो सभी खत्म खत्म ना हो, शाश्वत, हमेशा चलने वाली एक एक ड्रिंक का, मान लीजिए एक अमृत बरस रहा है स्वर्ग से, पावरिंग ऑन टू अस, जो हमारे ऊपर उड़ेल दी जाती है फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। ब्रिंक मतलब एज होता है, किनारे से, जो स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर उड़ेल दी जाती है, कुछ इस तरह की सुंदरता वस्तुओं की होती है, जो एक ना एक अमृत रूपी जो है, अमृत की तरह जो है हमारे ऊपर हमेशा फाउंटेन के रूप में, झरने के रूप में हमारे ऊपर उड़ेल दी जाती है। तो इस तरीके से जो है पोएट ब्यूटीफाई कर रहा है वस्तुओं को, वस्तुओं और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को, कि लोग इसको समझें और जानें, ठीक है, कि वस्तुओं की क्या सुंदरता होती है और एक वस्तु कैसा प्लेजर हमारे लिए क्रिएट करता है। So students, this is what the poetry we have, we have heard here. So hope we have read, so hope you guys like this poetry. Thank you so much for watching. If you have any query, you can contact me. Thank you so much.